Online friend, is my voice audible and screen visible now? There was power failure. Yes, Online sir. friends, online friends, Yes, yes, audible, sir. screen is also visible. Yes, yes. Yes, sir. Yes, if it is showing index. Yes. Okay, let's start the session. So today we are starting with our last uh, topic, techniques of costing. So methods of costing, I have seen one problem was pending and it is easy. You will be able to solve it. Is just changing the figures. We already solved that kind of uh, problem. So now we have, see, I'm just going through the syllabus. Please concentrate. So as per the syllabus, first part we have completed. It was part of theory. We did it, completed. Second, element of cost, material cost completed, employee cost completed, direct expenses completed, overhead completed, with all problems and theory element. Cost accounting standard, it is completely theory. Most of the part we have covered while going through the complete syllabus. वो करते करते हमारा पूरा हो गया है. You have to just go and read cost accounting standard. Very important. Don't miss those topics. Theory part. Cost bookkeeping. This I have intentionally kept it behind. ये बाकी है, ठीक है. Methods of costing, all we have covered. Job, batch, contract, process, and operating costing. Everything we have covered now. Now what remains? Yeah, 30% of marks is this marginal costing, standard costing, and budgetary control. This part, some portion cost bookkeeping, cost sheet, and all those things we have prepared. Only reconciliation part, which is, if you know how to reconcile the bank reconciliation statements, उसका थोड़ा भी लॉजिक पूरा नहीं लगता है. उसका 10% लॉजिक भी अंडरस्टैंड होता है. वाई इट हैज टू बी एडेड, वाई इट हैज टू बी डिडक्टेड. This will become easy, and this is accounting system, so it will not take more than 1 or 2 lectures. इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. But time now, whatever we are having now, as per me, including today's lecture, we are having only 10 lectures. May month पूरा 8 lecture बराबर, and अभी के 10 lecture बाकी है. So ये 10 lecture में we have to cover these 3 elements, and it is ऐसा नहीं कि होने वाला नहीं है. Everything will happen within this. So 2 or 3 lectures, 2 lectures for budgetary control, 3 lectures for standard costing, 3 lectures for marginal costing. All problems, everything. I am not saying shortcut. जो अभी तक जैसे करते हैं वैसा ही आगे जाएगा. So this is how, and now how much lectures? 3, 3 and 2. 8 completed. एक हाथ 1.5 or 2 lectures for this element. That's it. Finish. This is how we will be approaching our syllabus, and it will be completed. So don't get panic कि बहुत कुछ बाकी है. Nothing. It is as per plan. It is as per schedule. By end of May, your 100% syllabus will get completed. Done. With this confidence, we are starting with a new topic, which is known as budgetary control system. So first we'll complete budget, then we will go for marginal costing, and last we will be doing standard costing. क्या है पेज नंबर बजट का? फाइव ट्वेंटी 530. Budget and budgetary control. Now what do you mean by budget? What do you mean? Forcing our future, right? Forcing our future, what is going to happen in next year? Simple that way. Everybody prepares budget. Even you people at student level, you prepare a budget. Monthly आपको पैसा मिलता है, pocket money.
10,000 रुपये. तो हाउ टू यूज दैट 10,000 रुपीज पॉकेट मनी, वो आप प्लान करते हो बरोबर. हाउ डू यू प्लान योर ट्रैवलिंग, योर स्टे. अगर स्टे, आई एम सेइंग स्टे वाले लोगों के लिए 10,000 सबको नहीं मिलेगा. जो स्टे करते हैं अवे फ्रॉम होम उनके लिए मिलता होगा. तो स्टे है, खाना पीना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज देयर. और उसमें से भी कुछ बचाने की कोशिश करते हैं बराबर. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बजटिंग देयर रिक्वायरमेंट. दे आर बजटिंग देयर रिक्वायरमेंट. कितना ज़रूरी है, कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा करेंगे हम लोग. करेक्ट. सो इज व्हाट at personal level, what you at student level, what you do it at family level, at group level, at company level also. It is very very important aspect. Go in any industry, either you go in auto industry or manufacturing plant, rather than auto I should say manufacturing or service or IT or anywhere. As a cost accountant, you will have to go by this topic, by this way or that way. That is going to happen because everybody prepares budget for next year, and then the budget is compared with actuals, and then the variance is being derived, and then the reasons for variance. Let me tell you with an example. So next year अभी आपका FY20 कौन सा 26 चल रहा है कि 25? नाउ रनिंग FY20 कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 25 या 26? 25, 26. 26. FY26 is the running year now. You have prepared budget for April, May, मंथ वाइज से पूरा साल भर का बना है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे मार्च तक आपने बजट बना दिया. नाउ यू हैव बजटेड सेल्स, यू हैव बजटेड एक्सपेंसेस एंड यू हैव बजटेड प्रॉफिट. ठीक है. For the month of April, let's take an example. For the month of April, you have budgeted sales of rupees 1,000 rupees, expenses as 800 rupees, and a profit of rupees 200, which will get automatically generated. So this was your profit budget which you prepared, right? Now basis this, actually the actual हो जाएगा अप्रैल का. जैसे actual April get completed, you will plot the things. You will plot the things. Actually is 1,100, 950 is an expenses, and profit is what, 150. Now when you were saying that 1,000 was budgeted sales, actual sales is 1,100, means sales has increased, still your profit has reduced. So you will have to give the reasons for this. You will have to give the reasons for this. उसका नाम है variance analysis. उसका नाम है मतलब nothing but the standard costing. We'll go in standard costing how to do that. Simple है, nothing to worry. Standard costing अब तक आपके दिमाग में रहेगा the toughest topic of the subject. The way we approach, those who have studied with me in group 2, you people know it. The simplest topic that you face is the standard costing. But yes, standard costing में थोड़ा सा logics and all those things are required, which we will develop by budgetary control, marginal costing, and then we are going towards standard costing. Now you will have to give the reasons why there has been increase in sales. Either quantity might have increased or selling price might have increased, right? दो reason रह सकते हैं और multiple reasons रह सकते हैं. You will have to go and find out those reasons why these type of things are happening. Why expenses has gone up. Now expenses again categorized into how many heads? Material, labor and overheads. So in material there might be quantity variance, that might be price variance. All these things we will study in standard costing. Now first what we are studying is setting up the budget. पहले तो budget set up कर लेते हैं. How the budget is set up? What should be the starting point? आपके हिसाब से क्या starting point होना चाहिए budget बनाने के लिए? Online friends, you can also tell. What should be the starting point for next year budget मुझे बनाना है. If I want to prepare budget for next year, what should be my starting point? Opening balance. Total
बोलो 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 बेझिझक, अरे एकदम बिंदास बोलो। गलत है मुझे सर बोलना, प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेके इस साल के ये यूनिट बहुत या फिर प्रैक्टिकल आंसर दिया है। आई वांट जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट मतलब प्रीवियस ईयर था ही नहीं कुछ सुकन्या, देयर वाज नथिंग लास्ट ईयर। अभी क्या करोगे? व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग? Opening capital. हाँ, Opening capital. ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर था ही नहीं कुछ, तो ओपनिंग इन्व्हेंटरी आएगा कहाँ से? सर टेंटेटिव्ह घ्यावं लागेल मग कुणाचा तरी रेफरन्स घेऊन, नहीं नहीं कुणाचा तरी रेफरन्स घेऊन काहीतरी नहीं, टेंटेटिव्ह. ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं देना है, थियोरेटिकल चाहिए अभी। आज मुझे थियोरेटिकल चाहिए। हाँ, करेक्ट। व्हाट इज योर सेल्स? हाउ मच सेल यू आर गोइंग टू डू? सेल कितना करने वाले हो? व्हाट इज योर सेल्स? सो इफ देर आर 4 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी. So first thing in any budgeting cycle starts with sales. How much quantity you are going to sell for next year of these products? How much sales you are going to make? Now with these sales, you will do back requirement. How much will be the production? How much should be the stock? स्टॉक में भी रखोगे, भले ओपनिंग स्टॉक नहीं, हमने बोला था जीरो बेस बजटिंग करना है। Now what do you mean zero based budgeting? Zero based budgeting means starting with scratch. What Sukanya was answering, she is having some previous experience. Practical experience रहेगा ना, तो एक दिमाग लगाया उन्होंने कि हम बेस लेके, प्रीवियस ईयर का बेस लेके नेक्स्ट ईयर का बजट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल है, बट ऑलवेज दैट विल नॉट वर्क. Many times things will happen that management will ask for zero based budgeting. What is zero based budgeting? Right from scratch. ऑनलाइन जा रहा है अभी, बीच में गुम हो गया था। हाँ सर अभी आ रहा है. हाँ, आवाज गुम हो गया था बीच में, ठीक है। सो आवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेल्स. नाउ फ्रॉम दिस सेल्स मैनेजमेंट विल थिंक हाउ मच यू वांट इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हो एट योर एंड, एट डीलरशिप एंड, एट रिटेलर एंड, हाउ मच इन्वेंट्री यू वुड लाइक टू कीप एज अ क्लोजिंग स्टॉक that you will take base. If there is opening stock, भले zero based budgeting भी रहेगा, फिर भी opening stock रह सकता है. If there is opening stock, that you will have to consider. And basis this, you will make the production plan, right? So, I will just take an example. ये इसको छोड़ देते हैं. I will take an example. 1000 units sales करना है. So production कितना हो सकता है अपना? Production कितना करना पड़ेगा? Why 1000? I will make 1100 production because I want to keep 1000 as an inventory, or I will make only 900 because I am having something in opening stock. So that care we'll have to take in this. So sales, उसके बाद how much production is to be done. Now that production comes to 1200 units. Now to this 1200 units, what will required? Purchase of raw material, right? Purchase of raw material लगेगा ना? Yes or no? ये sequentially, it's a simple thing, nothing, कोई rocket science नहीं है. Budgeting is an exercise which is inbuilt in our culture. अपने culture में inbuilt है. Personal level पे हम लोग budgeting करते हैं, तो company level पे भी वही करना है. Complexities will be there definitely, but it is inbuilt in our nature. हमको बचपन से हम conservative approach, हमको वैसे सिखाया गया है. 10 रुपये आया तो
₹8 खर्चा करो, ₹2 सेविंग करो। ₹8 खर्चा कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये आप प्लान करो। what you people are doing, that is budgeting at very micro level. This will be at macro level. ठीक है, तो सेल्स कर दिया, प्रोडक्शन फाइंड आउट कर दिया। नाउ प्रोडक्शन है तो यू विल रिक्वायर रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड। नाउ कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है, दैट आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यू हैव, हाउ यू वांट टू, हाउ मच रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यू वांट टू हैव। सो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कंसिडर करने के लिए। यू विल रिक्वायर लेबर ऑल्सो, and along with that there will be something known as overheads also. So all your budgeting cycles will start from sales, checking of inventory, then production आते ही तुम्हारा प्रोडक्शन का कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड ऑल्सो एंड सो फोर्थ, करेक्ट। सो इतना सा सिंपल है। अभी इसको जस्ट हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। See, now budgeting is a fundamental process in a cost and management. Involves a formulation of comprehensive plan. It cannot be one element. अभी इसमें इसके लिए क्या लगेगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के लिए कैश, बरोबर ना, कैश विल बी रिक्वायर्ड ना। सो हाउ विल बी अरेंजिंग द कैश, उसके लिए कैश बजट है। परचेज बजट तो रॉ मटेरियल का बजट देगा, कितना क्वांटिटी लगने वाला है, उसका कितना वैल्यू रह सकता है, दैट विल बी गिवन बाय परचेज। हाउ मच लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड, अगर ओटी देना है तो ओवर टाइम देना है, इंसेंटिव देना है तो इंसेंटिव देना है, टेम्पररी एम्प्लॉयज लेके काम चलाना है तो टेम्पररी एम्प्लॉयज लेके काम चलाना है। ऑल दैट कैन बी सीन, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड। कल क्या करना है अगर मुझे आज मालूम है तो आई विल बी प्रिपेयरिंग माई सेल्फ वेरी वेल, बरोबर। जैसे अभी 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, यू आर प्रिपेयरिंग, कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ मच टाइम यू आर हैविंग, how much time I should invest for this subject, that subject, X subject and Y subject, where I am strong, where I am weak, how much I want to study, all this what you are doing, planning ना। यहाँ पे भी वैसा ही है, मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना लाना पड़ेगा, क्या प्राइस से लाना पड़ेगा, all and how much cash I will require. Now this cash, how it will be getting generated, कहाँ से आएगा ये पैसा, सेल्स से अगर नहीं फुलफिल होता है तो और कहाँ से अरेंज, बैंक से लोन उठाना है, ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर। सो बजटिंग इज नथिंग बट द सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट एंड कैश बजट, खत्म। ये सब का मिला के हम लोग क्या करेंगे, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं मास्टर बजट पूरा बजटेड। नाउ यूर P&L अकाउंट में क्या रहता है, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, बराबर, एंड बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो इफ आई हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ मी, सेल्स भी है, एक्सपेंसेस भी है, कैपिटल एसेट परचेस करना है, लोन लेना है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, सो आई विल हैव बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल हैव बजटेड बैलेंस शीट ऑल्सो। सो all these small pieces I will put together and prepare a budgeted profit and loss account and budgeted balance sheet. Understood? Simple है, keep things as simple as possible, जितना सिंपल रखने की कोशिश करोगे कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, ऑल दिस 3 सब्जेक्ट आर लिंक्ड विथ ईच अदर। वो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। मैं उल्टा चलता हूँ, पहले बजटरी कंट्रोल रहता हूँ, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड देन आई कम टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Over a period I experienced that these are interlinked subject and we need to understand concept very well. If you understand budgetary concept, some part of marginal costing we are taking care. If we understood marginal costing and budgetary control, automatically standard costing becomes little bit easy. So go sequence wise also. But not required, ना, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ sequence की ज़रूरत नहीं. But अगर ये sequence से अगर जाता है तो I feel things becomes little bit easy for explaining. For understanding, I don't know. Okay. So with this we will be preparing the various budgets. So next year का plan कर रहे हैं, organization goal क्या achieve करना चाहता है, they will start from goal, how much profit. So board of director will say next year I want 1000 crore profit from this unit. अब now 1000 profit लाने के लिए पहले से sales decide करना पड़ेगा, sales से purchase, all these things happens, all this practically these things happens also, ठीक है।
सो फाइनेंशियल रोड मैप बोलते हैं उसको. फाइनेंशियल रोड मैप आउटलाइनिंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज, डिसीजन मेकिंग. अगर किसी ने बोर्ड ने बोल दिया मुझे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, ओके, वी विल बी एबल टू गिव इट, बट वी डोंट हैव दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी. We have production capacity basis which we can provide you 800 crore profit. 200 crore profit, if you want extra 200 crore profit, we will have to make so and so, so and so, so and so expenses or investments. That let board decide now whether they want to do those expenses or not. Understanding na ye next year, and budgets are of two types, short term budget and long term budget. Anything within 1 year is short term budget, anything more than 1 year is long term budget. मतलब budgeting can be done for a day, for a week, for a month, for quarter, half yearly and full yearly. 5 years strategy 5 साल का भी बनता है, 10 साल का बनता है. Where you want to see yourself after 10 years? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. You people are students. Are you asking yourself this question? Where I want to see myself after 10 years? If not, please ask yourself. Where you want to see yourself after 10 years? Then you will visualize. अरे 10 साल के बाद मैं कहाँ पे रहूँगा? Then only you will start preparing today. Where you want to be after 10 years? इतना मत सोचो अभी. But think of that. Where you want to see yourself after 10 years? Just ask this one simple question. At the time of sleeping, ask this question to yourself. 10 साल के बाद मैं कहाँ पे खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? You will get answers. You will start walking on that street. कि 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो? ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. Student level you may not be able to visualize that, but still ask yourself. Okay. Now budget terminology, quantitative expression of plans for defined period of time. क्वांटिटेटिव रहेगा, क्वांटिटी कितना सेल करना है, उसका वैल्यू कितना रहेगा, कितना लेबर, कितना आवर्स, घंटे काम करना पड़ेगा. ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू दिस. फोरकास्ट, उसी को फोरकास्ट बोलते हैं. इट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी का? तो ऑब्वियसली प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल. नहीं तो सेल्स वाला बोलेगा 1000 यूनिट बना सेल्स करने वाला हूँ मैं. प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं 2-3,000 बना के दूंगा, तू 1000 बना, 2000 इधर पड़ा. ऐसा चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में? नो. देयर हैज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिटवीन ऑल द फंक्शंस. अदरवाइज सेल्स वाला बोलेगा मैं 1000 यूनिट सेल कर सकता हूँ, प्रोडक्शन वाला बोलेगा मेरा कैपेसिटी 200 का ही है. क्या बोल रहा है 1000 यूनिट बेचने का? कैपेसिटी तो 200 का ही है, कहाँ से 1000 यूनिट सेल कर पाएगा ये? दैट कोऑर्डिनेशन एंड थिंग्स शुड हैपन. नाउ सी प्रिपरेशन ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हैं. अभी मैं जितना भी बोला ना ये पूरा थ्योरी में अभी तक कवर अप कर लिया. यू हैव टू गो एंड रीड वंस. सो बॉटम अप बजट मीन्स व्हाट? बॉटम अप बजट. नाउ इफ यू वी आर डिफरेंट फंक्शंस. ये सेल्स का बजट आदमी है, ये प्रोडक्शन का आदमी है, ये क्वालिटी का आदमी है, ये परचेस का आदमी है. सब लोगों को पूछा जाएगा कि सेल्स ने बोल दिया मैं 1000 यूनिट बेचने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर. आप लोग क्या करोगे? बॉटम अप 1000 यूनिट्स के आजू बाजू में यू विल प्लान क्वालिटी, यू विल प्लान परचेज, यू विल प्लान सम इन्वेंट्री. ऑल दिस थिंग्स विल हैपन. बॉटम अप बजट बोलते हैं, नीचे से ऊपर बनाते हुए जाएंगे. ओके. एंड टॉप डाउन मतलब ऊपर बोल दिया भाई मेरे को 1000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए नेक्स्ट ईयर, तेरे को क्या सेल करना है, तेरे को क्या प्रोडक्शन करना है, यू डिसाइड एंड गेट टू द टॉप डाउन टारगेट्स. ठीक है. नेगोशिएटेड रहता है. Participatives, very rare to see those, but yes, theoretically yes. So stages, पहले तो कम्युनिकेशन करना है पॉलिसी का, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है. वो ऊपर से बोर्ड ने जस्ट बोल दिया 1000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी दौड़ेगा नहीं. दे विल रियली सी वेदर दे आर एबल टू गिव दैट प्रॉफिट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, एंड देन एट द एंड देयर विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट. ठीक है. Now types of budget. Till here any question? Any question online friends? Till here? No sir. No question? पक्का? Till here no question? ठीक है. Now types of budget.
फंक्शनल बजट, ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. सो फंक्शंस क्या रह सकते हैं? सी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. मास्टर बजट, फंक्शनल बजट. फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंटल, सेल्स का बजट अलग सा, परचेज का बजट अलग सा, क्वालिटी का बजट अलग सा, रेवेन्यू सेपरेट, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एवरीथिंग टू बी डन. टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बजट. लॉन्ग टर्म, anything more than 1 years may be preferred as long term. Sometimes 1 to 2 years को short term बोलते हैं, more than 2 years is long term. ठीक है. करंट एकदम छोटा भी करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे कितना प्रोडक्शन प्लान करना है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बजटिंग एक्सरसाइज. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी. फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. फिक्स्ड बजट मतलब व्हाट? फॉर एग्जांपल वन एक्सपेंसेस आई एम टेकिंग, जैसे हम लोग हमेशा देते हैं, क्या एग्जांपल देते हैं? रेंट ऑफ द फैक्ट्री फिक्स्ड है ना, अब प्रोडक्शन करो ना करो इतना फिक्स खर्चा आने वाला है. एंड फ्लेक्सिबल मीन्स व्हाट? रॉ मटेरियल. अगर एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल उतना लगेगा एक प्रोडक्ट के लिए. 1000 बनाऊंगा तो 1000 प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लगने वाला है. फॉर एग्जांपल मोबाइल, इफ आई मैन्युफैक्चर वन मोबाइल, one battery will get consumed. If I manufacture 100 mobiles, 100 battery will get consumed. If I manufacture 1000 mobile, 1000 batteries will get consumed. Means flexible है. And if I don't manufacture any mobile, no battery will get consumed. Flexible budget or flexible expenses. That exercise we will be doing. ठीक है. So देखो यहाँ पे भी long term period more than 1 year ही बोला है. More than 1 year is long term budget. बनाते 2 years, 5 years, 10 years. Prepare the budgets. Short term budgets less than 1 year. Current budget चालू period का. Functional budget as we said, sales budget, purchase. But this all should go hand in hand है. ऐसा नहीं है कि sales कुछ चल रहा है, purchase कुछ चल रहा है, production no. There has to be coordination between all these functions. Then only the company will be able to achieve the budgetary targets. नहीं तो सेल्स वाला बोलेगा 1000 यूनिट बेचने वाला हो, परचेस वाला बोलेगा मैं 2000 का मटेरियल ला के रखता हूँ, तेरे को बना जितना बना है. प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं 500 ही बना पाऊंगा. देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. ऐसे में कंपनी परफॉर्म कर पाएगी क्या? नहीं. तर एकदा मास्टर आणि फंक्शनलचं थोडं क्लिअर सांगा ना सर. हे काय मास्टर बजेट? मास्टर बजेट इज नथिंग बट बजेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दैट्स इट. तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, बनाते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट्स बनाते समय करते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? येस. इन द बुक्स ऑफ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड सो एंड सो, हम बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो, ये करते हैं. These are financial statements. Now actual information is basis that we prepare this information, but profit and loss account, balance sheet. And if you have next year ka budgeted plan, sales, expenses, everything, so you can prepare budgeted profit and loss account and budgeted balance sheet, right? कर सकते कि नहीं? अरे करते हैं, वही तो करना है. ओनली सेल्स बजट लेके क्या करना है? ओनली परचेज बजट लेके क्या करना है? ओनली एक्सपेंस बजट लेके क्या करना है? नथिंग. यू कैन डू वन थिंग इन आइसोलेशन. सबको कंसोलिडेट करके बजट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट बना दिया. दैट इज व्हाट इज बिकमिंग योर मास्टर बजट एंड कैश बजट ऑल्सो. इनफैक्ट इट हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट. सो नेक्स्ट ईयर बजट बना लिया अपना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, फॉर ऐसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बना लिया, और हमारे पास कैश का प्रोविजन ही नहीं है उस हिसाब से मंथ ऑन मंथ. कैश तो ऐसे ही कुछ तो भी चल रहा है. आज 1000 रुपये एक्सेस है, कल 2000 रुपये शॉर्टेज है, परसों रहेगा ये सिचुएशन. बट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट एक्सेस 1000, वेर यू आर यूटिलाइजिंग. शॉर्टेज आएगा तो कहाँ से लेके आने वाले हो? ये पूरा प्लान होना चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे. ओके. सुकन्या अंडरस्टूड मास्टर बजट? येस सर, अंडरस्टूड. मास्टर बजट कुछ नहीं, ऐसा कुछ ग्रेट है क्या? नहीं. एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है. फिक्स्ड बजट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फिक्स्ड नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के लिए, एंड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए. इफ योर एक्सपेंसेस प्रोडक्शन इंक्रीजेस, expenses will increase. If production decreases, expenses will decrease. Correct? So will be the sales also. If your sales increases, obviously production will increase.
obviously expenses will increase, obviously your revenue will increase if you don't change the price, selling price. Vice versa, those will come into flexible budget. Now coming to practical problem, directly practical problem number 26. Should we start? See, we will go step by step. यही steps है. कौन सा पहले सेल्स बजट सीखेंगे, फिर प्रोडक्शन बजट सीखेंगे, फिर परचेज बजट सीखेंगे, फिर एक्सपेंस बजट सीखेंगे, एंड देन विल प्रिपेयर कैश बजट. एंड अगर है ये सेशन में P&L नहीं है, लेकिन अगर है तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देंगे. इफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है. फर्स्ट सेल्स बजट के लिए the Barker company manufacture two models of adding machines A and B. The following productions and sales data for the month of June 22 are given below. Estimated inventory on June 1. कितना inventory उनके दो product A and B. Desired inventory on June 30. Now when it says June 1 मतलब June 1 का inventory और June 30 का inventory, इसका क्या meaning होता है under the line? सॉरी, अरे बोलो. अरे तुझा आवाज तिथून येत नाही बिचारे, ते काय म्हणतील ते सुकन्या 50 किलोमीटर लांब बसते, तिचा आवाज कसा येणार इथे? तुझं इथेच बसला आवाज बोलो. अरे डरो मत. हाँ ऐसे बोलो, स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग यार. जोर से बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. गलत आंसर आने तो कोई बात नहीं. यहाँ से अपना कितना मीटर है? 10 फीट. यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा. वो सुकन्या देखो 40 किलोमीटर से आवाज देती है वहां से. स्ट्रॉन्ग वॉइस, ठीक है. सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज देयर, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देयर, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम हैज बीन गिवन एंड सेलिंग प्राइस भी दिया है. सो दे हैव गिवन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज टर्म्स ऑल्सो, ठीक है. सो प्रिपेयर अ सेल्स बजट एंड द प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जून. सो हम दो बजट बना रहे हैं अभी immediately, simultaneously, sales budget and production budget. Any budget, as I told you, starts with sales. In fact, अगर किसी ने डायरेक्ट दिया तो मुझे 1000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ऐसा किसी ने बोला, then also it will start with sales only, because how much sales you will make to get that profit. But things, a proper budgeting system cycle should start with sale. ऐसे जरूरी नहीं है कि सेल से शुरू होगा, but it should start with सेल्स, ठीक है. चलो सर ओल्ड बुक मध्ये 35 नंबर आहे का इलस्ट्रेशन? किती? 35. 35 नंबर काय आहे? 531. मी बुक ओपन नाही केलं, सॉरी. 531. हाँ चलो, पहले तो हम लोग सेल्स बजट करेंगे. इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कौन सा कंपनी है? बार्कर कंपनी. सेल्स बजट, पर्टिकुलर्स, दो प्रोडक्ट है ना, ए बी एंड टोटल. सी दिखने में एकदम सिंपल लगेगा, बट स्टेप बाय स्टेप करते चलेगा तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू वन गुड थिंग विच यू पीपल विल लाइक. बजटरी कंट्रोल विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो 10 में से पूरा 10 लेना है, और वो प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए. सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ओवरहेड्स, आपको पूरा मार्क्स लेना ही लेना है. इनफैक्ट सब लेना है मार्क्स, नो इशू. बजटरी कंट्रोल में तो आपका 1 मार्क्स भी मिस नहीं होना चाहिए.
आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इवन इफ यू आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज गुड, बट गूगली आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। वो कैसे, ठीक है, वी विल ट्राई टू मिटिगेट दोज थिंग्स, बट स्टिल देयर विल बी एन इशू। अदरवाइज आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 30 के 30 पूरा मार्क्स आना चाहिए, ओवरहेड्स में 10 का 10 पूरा आना चाहिए, बजटरी कंट्रोल में से 10 का 10, 30 40 50 हो गए 50। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 10 में से 5 पकड़ो, मार्जिनल कॉस्टिंग में से 10 में से 5 पकड़ो, 60। बाकी बेसिक थ्योरी वीरी पकड़ के 10, 70। क्या चाहिए और? थिंग्स आर वेरी इजी इफ यू प्लान इन प्रॉपर वे। ठीक है, चलो। सेल्स इन क्वांटिटी, इन यूनिट्स है ना, सेल्स इन यूनिट्स। कितना सेल्स करने वाले देखो, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम 7,500, 5,000, 7,500 and 5,000. So total quantity is this. Sales rupees per unit. Sales in rupees per unit. कितना है पर यूनिट सेल्स? 75 and 120. 75 and 120. उसका टोटल मत लो, नहीं तो टोटल ले लोगे। मार्क्स पूरा दे देगा यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स पक्का कम कर देगा। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, सो इट इज नथिंग बट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज पर यूनिट। दिस into 75, this and total. So your sales budget is ready. Next year sales is how much? 11,62,500. Done. Next year sales is 11 क्वांटिटी में भी है। हम लोग 7,500 यूनिट्स का ए प्रोडक्ट बेचने वाले, बी प्रोडक्ट 5,000, ऐसा 12,500 यूनिट्स आई एम गोइंग टू सेल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हैज बीन गिवन, सो total sales in rupees is also being worked out. Clear on this? ठीक है। Now basis this they are asking what production budget. Now we have to find out the production budget. So in the books of Barker company, production budget. Production budget. See, now production budget will always start in sales in units. Always production budget in units ही रहेगा, production budget in units ही रहेगा। So sales कितना करने वाला है? 7,500 ना, पहला वाला 7,500 and 5,000. So 12,500 का सेल्स होने वाला है। Now how much you want to keep in inventory? Inventory में कितना रखना चाहते हो? That we will have to add. Add closing expected closing inventory. बराबर ना? Why closing inventory to be added? Because we will have to produce it and keep it. Understood ना? अब तक हम लोग closing कर माइनस करते थे। Opening stock of raw material, add purchases, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों करते थे? कितना मेरे पास कितना स्टॉक है देखने के लिए, और हाउ मच आई हैव टू परचेस। इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। व्हाई क्लोजिंग इन्वेंट्री? बिकॉज वी विल हैव टू प्रोड्यूस इट एंड कीप इट ना। यस और नो? मुझे अगर नेक्स्ट ईयर 10,000 मोबाइल बेचना है, आई हैव टू सेल 10,000 मोबाइल्स नेक्स्ट ईयर, एंड आई हैव समथिंग इन इन्वेंट्री। 2,000 में मोबाइल मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं प्रोडक्शन कितना करूंगा? 8,000 का ही करूंगा ना। 10,000 बेचना है, 2,000 ऑलरेडी मेरे पास है, व्हाई शुड आई मैन्युफैक्चर दैट? सो प्रोडक्शन कितना रहेगा? 800 का। लेकिन मुझे कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना है, देन आई विल हैव टू ऐड दैट ना। सो 7,500 का सेल करने वाला हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री 4,000 and 2,500 and 2,500. So
डिजायर्ड टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ये टोटल रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट, ये इतना रिक्वायरमेंट है, एग्रीड, यस और नो, प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली, एग्रीड ये मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है, बट समथिंग आई एम ऑलरेडी हैविंग इन माय स्टॉक एज ओपनिंग स्टॉक, व्हाई शुड आई मैन्युफैक्चर, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री फर्स्ट जून 4500 and 2250. So production in quantity, in production. So total requirement was 11,500, उसमें से मेरे पास ऑलरेडी 4.5 पड़ा हुआ है, तो मैं कितना बनाने वाला हूँ, ओनली 7,000 ऑफ ए, एंड यहाँ पे कितना बनाने वाला हूँ, सो माई प्रोडक्शन इज 12,250. Understood? Pakka. So we completed 2 budgets now. Sales and production budget. Done? Should we proceed further? पक्का? एक बार देख लो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से. बोल ना. कुठून करशील तू, का कशाला पैसे कशाला पाहिजे ते तुला, मग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जाईल ते, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर रिक्वायरमेंट, ओवरहेड रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी, प्रोडक्शन विल बी इन क्वांटिटी, सेल्स कैन बी इन क्वांटिटी एंड रुपीज टर्म्स. अगर इसको रुपीज करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलोगे. प्रोडक्शन विल नेवर बी इन रुपीज, ना, इट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन विल बी इन क्वांटिटी, प्रोडक्शन इन यूनिट से. अब इसको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैं मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा आपका. डन? ऑनलाइन फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? यस सर. चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं. प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 months एंडिंग 31st March 22 फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 products ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सो 4 प्रोडक्ट है, ABCD, एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक है, एस्टिमेटेड सेल्स है, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, सो लेट्स प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट. सो इन द बुक्स ऑफ, कौन सा कंपनी है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी. सो 4 प्रोडक्ट है अभी, ABCD. चलो, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सेल्स. कितना सेल्स करने वाले देखो. एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 10,000, 15,000, 10, 15, 13, 12. So you are going to sell 50,000. टोटल नहीं लिया तो भी चलेगा, बट आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एड. एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कितना, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक 3532, 3,000, 5,000,
3000, 2000. So मेरा total requirements come to 13,000, 20,000, 16,000, 14,000. ये टोटल रिक्वायरमेंट है, बराबर ना. सेल्स करने वाले 10,000 प्लस मैं स्टॉक में भी रखना चाहता हूँ 3,000. सो मेरे को कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच? 13,000. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? सेल्स add closing stock minus opening stock is equal to production. Less opening stock. I am already having how much in stock? 2,000. Why should I manufacture? Yes. इसका कितना है? 3, 4, 3, 3, 4, 3. प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना है? 13 minus 2,000. So this 51,000 numbers of the production consisting product A 11,000 units, product B 17,000 units, product C 12,000 units, and product D 11,000 units. Should we go for next illustration? जाना है? आसान है बजटिंग? गुड. स्टेप बाय स्टेप. यस, फर्स्ट स्टेप इज इजी, नेक्स्ट स्टेप विल कम. उसको भी इजी कर देंगे. 10 में से 10 मार्क्स पूरा लेना है बजटरी कंट्रोल में. नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. तुम्हारा आगे देखो. फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एस बिलो. प्रोडक्शन है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल. द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 types of product X and Y. The forecast about the number of units to be sold in first 7 months is as given below. So product X and product Y का मंथ ऑन मंथ सेल्स है ना, ये सेल्स दिया है, मंथ ऑन मंथ सेल्स दिया है. It is anticipated that there will be no work in progress at the end of any month. No work in progress. Finished units equal to half of the sales of next month will be in stock at the end of each month, including December of the previous month. Prepare a 6-month ending 30th June a production budget and summarize production budget. Summarize cost of production budget. ठीक है. अभी हम लोग डिफिकल्टी लेवल का एक लेवल के आगे नेक्स्ट लेवल जाए. अभी हमने प्रोडक्शन देखा, हमने सेल्स देखा, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जा रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो मंथ ऑन मंथ बेसिस, दैट ऑल्सो विद वेरिएबिलिटी ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. चलो रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट. पहले रीड करना है. Done? Should we start? So first we will find out how much production has to be done. Sales उन्होंने दिया है. They have given sales. They have given the inventory level that they have to maintain. Now we will first find out how much production has to be done. So production, statement of production budget. Product X का करेंगे. Product X. 2 प्रोडक्ट है ना. So कौन से महीने से? मंथ वाइज है ना. Jan, Feb, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के. प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, प्रोडक्ट एक्स. हाँ
6 महीने के लिए बोला ना करने के लिए. जुलाई है, मैं जुलाई एक जगह यहाँ पे लिखता हूँ. डोंट राइट जुलाई, स्टेटमेंट में मत लाना, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पसेस इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो मंथ ऑन मंथ टोटल भी आ जाएगा यहाँ पे. टोटल पे आ जाएगा. ठीक है. यस और नो. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर सेल्स. प्रोडक्ट एक्स का सेल्स देखो 10,000 12,000 16,000. 10,000 12,000 16,000 20,000 24,000 and 24,000. So your total sales is 1,06,000. Your total sales is 1,06,000. Add closing stock of inventory. Add expected closing stock of inventory. Add expected closing stock of inventory. Closing stock of inventory कितना है? See यहाँ पे होना है. There will be no WIP. Life is easy. Finished units equal to half of the sales of the next month will be in stock at the end of each month. Now what does it mean? नेक्स्ट मंथ में मैं जितना सेल करने वाला हूँ उसका आधा मैं ये मंथ के क्लोजिंग में स्टॉक में रखना चाहता हूँ. ठीक है. अभी अप्रैल चल रहा है. एग्रीड. अप्रैल एंड में मेरा पास कितना स्टॉक रहना चाहिए? द सेल्स विच आई एम गोइंग टू मेक इन द मंथ ऑफ मे, उसका आधा शुड बी इन माई स्टॉक टुडे. टुडे मतलब एंड ऑफ अप्रैल में. अंडरस्टूड. सो आई विल गो इन मंथ ऑफ एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी. जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? फेब में जितना सेल करने वाला था उसका आधा. एग्रीड. यहां पे मार्च में जितना सेल करने वाला था उसका आधा. नेक्स्ट अप्रैल में जितना सेल करने वाला था उसका आधा मेरा मार्च एंड में रहेगा. नेक्स्ट 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 अभी यहाँ पे जुलाई में, जुलाई का कितना सेल्स था उसका आधा. बराबर ना. जुलाई में कितना सेल्स था? हमने जुलाई को स्टेटमेंट को बाहर में रखा है. व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट अस. बट जुलाई का सेल्स कितना है? 20,000. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई प्लॉटेड ओवर हियर. Total requirement. This is what is our total requirement. Now यहाँ तक समझ में आए तो ये आगे जाएंगे. Let's opening. सर आय थिंक स्क्रीन हँग झालंय सर. स्क्रीन हँग झालंय. If you think it is हँग तो झालंय. आणि क्लिअर पण नाही दिसत आहे सर. हा क्लिअर दिसत नाहीये. काय घेतलं मला हेच नाही कळलं. नाही होते. नहीं हो रहा है ना वो. मैं क्या करूँ?
नाउ इट इज मूविंग, मूव होता है क्या था? हो सर, हो. ठीक है. नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री. नाउ व्हाट विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ जनवरी? दिसंबर का क्लोजिंग. ओके, समझ लो. जस्ट आई एम इंसर्टिंग वन कॉलम ओवर हियर, यू डोंट डू एनीथिंग. मैं दिसंबर का यहाँ पे जस्ट एक कॉलम अगर मैं डालता हूँ, यहाँ पे दिसंबर रहेगा. दिसंबर का अपने पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन दिसंबर में कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहता हूँ मैं? जो जनवरी का सेल्स रहेगा उसका आधा. बराबर? एग्रीड? नाउ दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी. January closing stock will become opening stock of February. February का closing stock will become opening stock of March. March closing stock will become opening stock of April. April closing stock will become opening stock of May. And May closing stock will become opening stock of. Understood? क्या किया मैंने? अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? ठीक है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, यहां तक तो समझ में आया? नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ये 6000 है जनवरी का. मैं पहले जनवरी क्लोज कर लेता हूं. जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फेब्रुवरी. ये तो समझ में आएगा? आएगा ना? जनवरी इज क्लोजिंग इज ओपनिंग फॉर फेब्रुवरी. February's closing is opening stock of March. March so and so forth करते गए हम लोग. But what will be the opening stock of January? January में का क्या opening stock रहेगा? और दिसंबर का closing रहेगा ना? December's closing will become January's opening. Yes or no? लेकिन दिसंबर में closing stock क्या रहने वाला है? Closing stock का formula is very clear. नेक्स्ट ईयर जितना सेल करने वाला हो उसका आधा. ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया. नाउ दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड. सो वी गॉट ऑल द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच एंड एवरी मंथ. डन? अंडरस्टूड? लास्ट पक्का? नहीं? यस तो यस, नो तो नो. ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, अंडरस्टूड सर. माझं कॅमेरा, माझा चेहरा असा दिसतोय जसं ब्लर झालाय. स्क्रीन पण ब्लर आहे सर. हा आता क्लीन झालाय. न स्क्रीन ब्लर आहे. आय एम नॉट. ठीक है. नाउ वी विल बी एबल टू डिराइव प्रोडक्शन. कितना प्रोडक्शन है? 16,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक. So total production is 1,11,000 of product X. So production का अगर फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है, प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अभी इससे सस्ता और नहीं हो सकता. इससे सस्ता और नहीं हो सकता. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज प्रोडक्शन. डन? नाउ इन द सेम वे वी विल हैव टू प्रिपेयर बजट ऑफ प्रोडक्शन, बजट ऑफ प्रोडक्ट वाई. प्रोडक्ट वाई का प्रोडक्शन बजट करना है अपने को. अभी देखो प्रोडक्ट वाई का, चलो कोई बात नहीं. पहले एक्स का समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वाई का समझ में आएगा. चलो लगाते हैं दिमाग. शुड वी स्टार्ट? हाँ नहीं तो आपको बनाना है, टेबल बनाने का है. ठीक है, टेक बनाओ बनाओ. हाँ तू शॉर्टकट ना बनव तो टेबल. स्केल आहे का बघू? नाही नाही तशी नको दाखवू, बुकमध्ये दाखव ना. झालं तयार तुझं स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट 39 मार्क्स दे दूंगा मैं तेरे को.
चलो शुड वी स्टार्ट. सो कितना है तुम्हारा दिसंबर का सेल बोलो. नहीं दिसंबर नहीं, अभी स्टार्ट विद जनवरी. जनवरी 28 28 24 28 28 24,000 20 20 24 20 16 16 20,000 16,000 16,000. सो ये तुम्हारा सेल्स पूरा पता चल गया. 1,32,000 यूनिट्स का सेल करना है. एड एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या रहने वाला है जनवरी में? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री नेक्स्ट मंथ सेल विल बी हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल विल बी इन इन्वेंट्री. फिर भी सोचो, हाँ, जनवरी में मैं कितना स्टॉक रखना चाहता हूं, नेक्स्ट ईयर में मैं नेक्स्ट मंथ में जितना सेल करने वाला हूं उसका आधा, हाफ ऑफ दैट आई विल कीप एज माय स्टॉक. सो मार्च में मेरा 24,000 का सेल है, उसका हाफ अभी स्टॉक में रखना चाहता हूं. सो एंड सो फोर्थ. और जुलाई में मेरा जितना सेल है उसका हाफ. जुलाई में कितना सेल है वाई का? 18,000. सो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया. नाउ दिस इज व्हाट इज आवर टोटल रिक्वायरमेंट. एग्रीड? One lakh 93,000 units are the total requirement. Now, if I am having already something in my hand, opening stock, why should I manufacture the product? So, कितना opening stock? जनवरी का ओपनिंग स्टॉक मुझे फाइंड करना है. जनवरी ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट? दिसंबर का क्लोजिंग. बराबर ना? दिसंबर का क्लोजिंग इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी. अब दिसंबर का क्लोजिंग नहीं है मेरे पास, बट फाइंड आउट कर सकते हैं कितना दिसंबर का. जनवरी का जितना सेल होने वाला है उसका आधा, तो मिल गया मुझे ओपनिंग स्टॉक. इन द सेम वे फेब में जैन का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फेब एंड सो फोर्थ. ठीक है. प्रोडक्शन इन यूनिट्स. नाउ हाउ मच इज प्रोडक्शन? टोटल रिक्वायरमेंट 42,000 माइनस लेस ओपनिंग स्टॉक. सो योर टोटल प्रोडक्शन इज 1,27,000 ऑफ प्रोडक्ट Y. ठीक है. सो वी प्रिपेयर बोथ द स्टेटमेंट. प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट X, प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट Y. एनी क्वेश्चन? There should not be now. Still there is question. नहीं रह सकता है. If there is, I will answer that. हे बघा मी कलर कोडिंग करतो. This 14,000 closing, opening 14,000. Now this 14,000 क्लोजिंग, दिस 14,000 उसका ओपनिंग बन जाता है. ये 12,000 ऐसे लेके चलना है. ये 12,000 इधर है, ये उसका ओपनिंग आ गया. बराबर ना? यस और नो? ठीक है. नाउ दोनों का प्रोडक्शन आ गया. नाउ वी हैव टू गो फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. बजट फॉर स्टेटमेंट ऑफ cost of production budget statement in the books of company. Cost of production budget statement or statement of cost of production. Simple sir. Statement of budgeted
cost of production. Particulars, product X and product Y. Now production, cost of production कौन से क्वांटिटी पे लेना है, ये सिंपल सिंपल चीजें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो ऑन व्हाट बेसिस आई विल प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स नंबर पे या प्रोडक्शन नंबर पे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं सेल्स नंबर लूंगा या प्रोडक्शन नंबर लूंगा. क्यों? सर प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन लेना है ना, पक्का, श्योर, ऑब्वियसली यस. प्रोडक्शन का मुझे कॉस्ट फाइंड आउट तो प्रोडक्शन नंबर का लूंगा ना. ठीक है, सो प्रोडक्शन इन नंबर्स, प्रोडक्शन इन नंबर्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स. कितना है प्रोडक्शन यूनिट्स एक्स का? जस्ट नाउ वी वर्कड आउट 1,11,000, वाई का 1,27,000. यस और नो? सो टोटल प्रोडक्शन इन नंबर्स हमने ले लिया. डन. नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट, सी ये इसको छोड़ दो, प्रोडक्शन इन यूनिट्स की दूसरी जगह पे होगा. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 12 रुपये 50 पैसे, 19 रुपीज बराबर. डीएमसी पर यूनिट, डीएमसी पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 12.50, 19, 12.50 एंड 19. तीन लाइन छोड़ना है, skip 3 lines, 1 2 3 4. So total DMC in rupees, DMC per unit in rupees. So total DMC कितना बनेगा? देखो 1,11,000 का प्रोडक्शन करने वाले थे. पर यूनिट इज हाउ मच? 12 रुपीज 50 पैसा. सो हाउ मच इज द कॉस्ट? 13,87,500 बराबर. 24,13,000. So total direct material cost is 38,500. Done? पक्का? Done or no? Yes? आवाज नहीं आ रहा यार, एनर्जी नहीं है. ऑनलाइन तो अपने मस्त आराम से बैठते आईपीएल का मैच देखते देखते. ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या स्कोर हो गया? मैच देखते देखते लेक्चर चल रहा है आप लोगों का, नहीं ना? कोई कुछ नहीं बोल रहा है. साइलेंस इज एक्सेप्टेंस ऑफ एलिगेशन. साइलेंस इज No sir, not watching. No sir, not watching any cricket. No, I am joking. But you people are silent. And when silence is there, it's acceptance of allegation. ठीक है. Now लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इन रुपीज, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इन रुपीज. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है? 4.57, 4.50 एंड 7. एग्रीड? सो टोटल डायरेक्ट वेजेस इन रुपीज, टोटल डायरेक्ट वेजेस इन रुपीज. सो कितना है? 1,11,000 बनाने वाले, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट 4.50. सो यहाँ पे प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट, प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट, 8,89,000. सो लेबर कॉस्ट कमिंग टू 13,88,500. डन. ओवरहेड्स. नाउ ओवरहेड्स देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल है, वेरिएबल बताए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट निकलना है अपने को पहले.
सो पर यूनिट कितना है देखो, वेरिएबिलिटी प्रोडक्शन के साथ कम ज्यादा होगा, बराबर ना। सो पर यूनिट कितना आएगा देखो, नाउ व्हेन द प्रोडक्शन वाज 2,20,000 यूनिट्स, दिस वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन है, अमाउंट कितना है 6,60,000। सो पर यूनिट कितना आएगा 2,20,000 प्रोडक्शन है, सॉरी ओवरहेड्स कितना है 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा 2,20,000 है क्या, 3 रुपए है ना, 3 रुपए है ना, किसी का तो वे 5 रुपए आया था, सेल संपले। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकाला पर यूनिट, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर दिस पीरियड है। सो कितना 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, पर यूनिट कितना आता है 3 रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग 3 रुपए लेके आ गए। प्रोडक्ट वाई के लिए कितना है, कैसे 9,60,000, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000। सो कितना आ रहा है 4 रुपए। सो पर यूनिट निकाल दिया हमने 4 रुपीज। नाउ वी कैन प्रिपेयर टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, total variable factory overheads, production into per unit। प्रोडक्शन कितना है 1,11,000 इंटू 3 रुपया, बराबर ना। यहाँ पे 1,27,000 इंटू 4 रुपीज। So total variable factory overheads is how much, 8,41,000। Understood? हाँ ना कोच। So total cost of production, total COP, total cost of production, ये तीनों का total cost of production is 60,30,000। डन। हो गया ना, प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, संपला ना, मग एवढं तो विचारलं होतं, इतना ही पूछा था, और क्या पूछे, हाँ और कुछ नहीं रे, इतना ही पूछे है ना। प्रिपेयर 6 मंथ एंडिंग प्रोडक्शन कर दिया एंड समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, खत्म। 12 से 15 मार्क्स ला, कितना आसान है। यस आई एग्री, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। चलो, शुड वी गो टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 29, ओल्ड बुक में इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 38 है क्या, 38 देवाचं नाव घ्या, 8 वाजत आलेत, इंटरनेट को कुछ तो भी हो जाता है 8 बजे, लेके प्रभु का नाम 8 को क्रॉस कर लेते हैं। जो का पाठ बघा, मी जोक करत असतो, तर
एन्व्हायरमेंट शुड बी लिटिल बिट फ्रेंडली ऑल्सो. आज मोबाईलची काही गरज आहे का आता? ज्याचा कोणाचा असेल काही गरज नाही ना चार्ज करायची. चलो. From the following figures, prepare raw material purchase budget for the month of. Now see, we have seen production budget, we have seen sales budget, we have seen cost of production budget. Now we are entering into fourth budget, that is raw material purchase budget. देखो एक ही दिन में 4 बजट कंप्लीट कर लिए. इसके बाद क्या बचेगा? ओवरहेड बजट, कैश बजट, मास्टर बजट. अगर है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो ग्रुप 2 में रहेगा मास्टर बजट. ठीक है, आसान है ना? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जनवरी 22. मटेरियल कितना? ABCDEF. एस्टिमेटेड स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कंजम्पशन है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट है. सो लेट्स प्रिपेयर परचेज बजट. So purchase budget, I will prepare a purchase budget. Purchase budget. कितने प्रोडक्ट है? A, B, C, D, E, F and total G नहीं है. ना परचेज करना है, परचेज भी वैसे ही करेंगे. कैसे? जितना प्रोडक्शन के लिए लगने वाला है, जैसे प्रोडक्शन डिपेंड ऑन सेल्स, परचेज इज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन. सो कंजम्पशन, प्रोडक्शन मतलब कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. बराबर ना? यस और नो? सो जितना प्रोडक्शन करने वाला है उतना रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा. और मैं कुछ इन्वेंट्री में रखना चाहूँगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री का एडजस्ट. सो परचेज, जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था, परचेज इज इक्वल टू परचेज इन यूनिट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? कंजम्पशन एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM. स्क्रीन इज मूविंग ना ऑनलाइन फ्रेंड्स? Yes, sir. ठीक है. सो बजटेड कंजम्पशन दिया है, बजटेड कंजम्पशन दिया है. हैव दे गिवन दिस डिटेल्स? एस्टिमेटेड कंजम्पशन, बजटेड नहीं, एस्टिमेटेड कंजम्पशन. कितना एस्टिमेटेड कंजम्पशन? 1,20,000, 44,000, 1,20,000, 44,000, 1,32,000, 36,000, 88,000, 1,72,000. बराबर ना? So estimated consumption is this 5,92,000. Estimated consumption in units. Units में बात कर रहे हैं हम लोग. Estimated consumption in units. आलं लक्षात? Yes. Add closing stock of raw material. एड क्लोजिंग स्टॉक. अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ रखना चाहता हूँ ना, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहता हूँ? एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 31 जनवरी. ये 1 जनवरी 30. क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 8,000, 20,000,
8,000, 28. After that 416 and 32,000. उसका टोटल मत लो रे बाबा, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट रहता है उसका, नहीं तो स्टॉक ले लोगे, क्लोजिंग स्टॉक ले लो सब स्टॉक का टोटल. सो टोटल रिक्वायरमेंट, दिस विल कम टोटल रिक्वायरमेंट. सो मुझे कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन करूंगा 1,20,000 का, प्लस स्टॉक में रखना चाहूंगा 20,000 रुपया, 20,000. सो दिस इज व्हाट इज माय टोटल रिक्वायरमेंट. मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है 44,000 प्लस 8,000, 32, 132 प्लस 28. सॉरी, ठीक है. लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अभी मेरे पास जितना अगर रॉ मटेरियल ओपनिंग में पड़ा है, व्हाई शुड आई परचेज, बराबर ना. 16,000. नेक्स्ट 624, 624,000, 2,000, 14,000, 28,000, 14,000, 28,000. सो परचेस ना, ये सब इन यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स, एवरीथिंग इज इन यूनिट्स. परचेस इन यूनिट्स, कितना परचेस करने वाले इन यूनिट्स में. सो मुझे हाउ मच quantity of raw material I will have to purchase for each product. 1,24,000, 46,000, 1,36,000. Agreed? Should we proceed further? Now we have got units, purchase in units. In units के purchases निकले. Now we have purchase price per unit, बराबर. Purchase price in rupees per unit दिया है. कितना देखो, 25 पैसा, मतलब 0.25 रुपीज में लिख रहे हैं हम लोग, पैसे में नहीं लिख रहे. 5 पैसे, 0.05. नेक्स्ट 15 पैसे, नेक्स्ट 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे. Got it? Purchase price in rupees per unit. Done? So total purchases in rupees, बराबर. So 1,24,000 यूनिट्स खरीदने वाले थे, मल्टीप्लाइड बाय 25 पैसा, रुपीज में 31,000 रुपीज लगने वाले, बराबर ना. अंडरस्टूड. ये 46,000 इंटू 5 पैसे क्या है मालूम नहीं है यार, 5 पैसे का क्या मिलता है आजकल. आफ्टर 1,36,000 इंटू 15 पैसे. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए. आप क्या करोगे मालूम है, एग्जाम में प्रेशर रहता है, पैनिक रहता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 डाल देंगे. लाखाचे 12,000. So this is what is your purchase value. So 1,28,300 is what the budgeted purchase price.
सो तुमको कैश कितना लगने वाला है आपको पूरे परचेस करने के लिए? टोटल परचेसेस इन रुपीज। डन? पक्का? Illustration number 30 is for your homework. Next, old book ला पेज नंबर का है? Illustration number 39 ना? 39 है सर। Everything is easy. You people will be able to work out. कर पाओगे? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो पूछ लो। Ask the question. पक्का कर पाओगे? ऑनलाइन फ्रेंड्स, होमवर्क। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31। सर ओल्ड बुक नंबर सर। ओल्ड बुक रहेगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Should we? Long Beach Tools Corporation has the following direct labor requirement for the production of a machine tool set. Direct labor time required for machining is 6 hours, rate per hour is 10. For assembly is 10 hours, rate per hour is rupees 8. Forecasted sales for June, July, August and September are 6,000, 5,000, 8,000, 7,000 units respectively. On June 1, beginning inventory of tool was 1,500. Closing inventory each month is 1/2 of the forecasted sales of the following month. Prepare production budget for the month of June, July, August. Direct labor. Develop a direct labor budget for the month of June, July, August and for each type of direct labor. So read the question once, we will solve it. चलो तो पहले हम लोग प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट जून जुलाई अगस्त का प्रोडक्शन बजट करते हैं। प्रोडक्शन बजट जून जुलाई अगस्त। तो प्रोडक्शन का फुल फॉर्म प्रोडक्शन का कैसे फॉर्मूला? प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, बराबर ना? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स कितना दिया है देखो, हाउ मच सेल्स हैज बीन गिवन? सेल्स 6,000, 5,000, 8,000 एंड 7,000। 6, 5। अच्छा आपने को कौन से मंथ का करना है? जून जुलाई अगस्त का। ठीक है, जून जुलाई अगस्त का। सेल्स जून का 6,000,
5,000 एंड 8,000. जुलाई का बाहर लिखना है आउट ऑफ 7,000. ओके. एड क्लोजिंग स्टॉक. एड क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? द क्लोजिंग इन्वेंट्री on June 1 beginning inventory of the tool was 1,500. so June 1 का opening inventory दिया है and closing inventory कितना है? next month का half. ठीक है. तो जून में कितना जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? जो मई में ओपनिंग स्टॉक रहेगा. तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट मंथ का सेल उसका हाफ है ना? हाफ है ना? यहाँ पे यस और नो? पक्का? हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ है ना? हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ. ठीक है. टोटल रिक्वायरमेंट. टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 29,000. ऑनलाइन फ्रेंड्स आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? Yes, sir. It's all fine. वाह ग्रेट. सो 8 बजने के बाद आज कुछ तकलीफ नहीं हुआ है. लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक. अभी ओपनिंग स्टॉक जून का स्पेसिफिकली दिया है. कितना है जून का ओपनिंग स्टॉक? 1,500 यूनिट्स. बराबर ना? ऑन जून 1 बिगिनिंग इन्वेंटरी इज 1,500. जुलाई का कितना रहेगा? जून का क्लोजिंग विल बिकम जुलाई ओपनिंग. जुलाई का क्लोजिंग विल बिकम जून. सो अगस्त ओपनिंग. सो टोटल प्रोडक्शन in units. Total production in units. Total production in units. Right? अभी लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर बजट. लेबर बजट कौन सा? ऐसे मशीनिंग शॉप. लेबर बजट मशीनिंग शॉप. पर्टिकुलर्स जून जुलाई अगस्त टोटल. लेबर बजट मशीनिंग शॉप. बजटेड प्रोडक्शन कितना है? बजटेड प्रोडक्शन जून में 7,000. देखो ऊपर से लेके आ रहा हूं मैं. एग्रीड? बजटेड प्रोडक्शन. टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट. कितना टाइम लगता है पर यूनिट? नहीं, कहाँ पे? time required is how much? 6. In time required per units in hours 6. So हर महीने 6 ही लगेगा. total time required in hours. So 7,000 into 6. तो इतने आवर्स लगने वाले हैं अपने को. 1,26,000 आवर्स. अंडरस्टूड? यस और नो? रेट पर आवर कितना है? रेट पर आवर, लेबर रेट पर आवर
लेबर रेट पर आवर इन रुपीज कितना है, यहाँ पे दिया है देखो, लेबर रेट पर आवर इन रुपीज 10 रुपया। सो टोटल मैन पावर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट 32,000 into 42,000 into 10, $12,60,000 is the total labor required. पर आवर है, पर यूनिट है, आवर से है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, 12,60,000 इज द टोटल आवर रिक्वायरमेंट। मशीनिंग शॉप हो गया। इन द सेम वे वी विल प्रिपेयर असेंबली शॉप। सिंपल है, असेंबली शॉप। प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, बराबर ना, ओनली टाइम रिक्वायरमेंट बदल जाएगा। कितना टाइम रिक्वायरमेंट? 10 आवर्स, बराबर ना, पर यूनिट इज 10 आवर्स and rate per hour is how much? 8. That's it, finish. Now we have done all these production, purchase, sales, all budget we have done. Now we will be moving to the next budget, that is overhead budget. ठीक है, overhead का कैसे वर्किंग करते हैं, चलेगा या कैपेसिटी खत्म? नहीं, कैपेसिटी खत्म है तो खत्म है, नो प्रॉब्लम, विल स्टॉप ओवर हियर, नो इशू। कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी कुछ नहीं करना है। चलो फिर देन लेट्स स्टॉप ओवर हियर। एक होमवर्क के लिए करिएगा। टुमारो वी विल बी कवरिंग कैश बजट, एवरीथिंग, काफ़ी कुछ हो जाएगा। 2 more lecture and budget will completed. Done? Online friends, any query? Online friends, any query? No sir, understood. बाय बाय, एंजॉय योर, कितना 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं आपको। एंजॉय योर 10 मिनट्स, मैच देख लीजिएगा पूरा। बाय बाय। Yes sir.